So hello and very good evening to everyone. Welcome to the class of geography. And now I think you can see me in the screen. Okay. And if everything is audible, visible, just confirm me once. Sharing my screen. And if you guys have any doubt to taken regarding the last class or with any other class with any concept, okay, so you can reach out to me. अभी क्लास में पूछ सकते हो या बाद में भी पूछ सकते हो. एवरीवन हैव देयर माय नंबर 2, ठीक है. और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल गई होंगी आपको, इसकी भी मिल जाएगी. सो नॉट टू वरी अबाउट कि अगर नहीं कवर किया तो कैसे करेंगे. सो वेलकम यू ऑल. इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट आस्क मी फर्स्ट. कोई डाउट है किसी का? एनीवन? तासो, ओलियांग, ओरांग. मैं यूट्यूब पे लाइव करने वाला था बट what I have seen that there was a still live going on, so I was not able to do that. So इसलिए यहाँ पे किया. So just during the time of the class, so just do keep checking on the notification of the group. ठीक है. And I hope you guys have also joined that newspaper group where I'm sharing daily newspaper. ठीक है ना. Very soon maybe I'm going to make the editorial section also. अच्छा, कौन कौन से लोग चाहते हैं, कुछ बताओगे क्या मेरे को कि एक एडिटोरियल बनाया जाए क्या एक डेली बेसिस पे न्यूज़ एनालिसिस के लिए, ऑन डेली बेसिस पे न्यूज़ एनालिसिस के लिए एडिटोरियल बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर. ठीक है. एक लोग है, एक ही लोग चाहते हैं. चलो. So just confirm me once that everything is okay, visible, audible सब है. Confirm me once. ठीक है. Thank you. And what I will do today, so थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. कल हिमालयाज़ के बारे में बात किया था. We'll talk today with some more concepts. And then most probably from tomorrow we're going to shift in the section of mapping. Why? I'll let you know. बिकॉज जियोग्राफी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सेक्शन ऑफ मैपिंग. तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैपिंग से हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी हैव स्टडीड इन द यस्टरडेज क्लास, आई एम जस्ट टेकिंग द रिकॉल ऑफ दैट. ठीक है. सो जस्ट बी विद मी. So we have started from here. I was telling you about overall the formation of the Himalayas. So how the Himalayas has formed. So there I told you that overall there was a plate known as the Indian. So first there was a Pangaea. So Pangaea was what? Pangaea was a complete continent. Then the Pangaea was divided into Laurasia and Gondwana. So India is the part of the Gondwana. Hence all the rocks that are there are the part of the age of the Gondwana only. Then there was a Tethys Sea, some sea there, and this Indian plate, this Indian plate moved towards the Eurasian plate. ठीक है ना. The Indian plate moved towards the Eurasian plate. Clear? Now this leads to the upliftment of the young fold mountain, which is known as the Himalaya, because the Indian plate submerged into the Eurasian plate. ठीक. And this is the young fold mountain because this has formed in a very recent time in terms of the geological age. But there are old fold mountains too. For example, the Aravalli, they are the oldest fold mountain of the world. Aravalli are the oldest fold mountain of the world. So this was the pictographical representation that I have shown, that how the Indian plate submerged into the Eurasian plate. And there I have also covered the concept that when a plate undergoes subduction, that time, because it's there in its asthenosphere and everything is in the molten state, so it melt down and it gave genesis to the volcanic eruptions, taken or seismic activities. And if this plate, the first plate जिसके वो नीचे जा रहा है, if this is the oceanic plate, so definitely there will be lot of water. So in that case what will happen, this lava will solidifies. ये क्या हो गया? ठीक है.
this lava will solidifies, and it will make the island. So how island forms? Island forms only on this way, when lava or solidifies on the surface, makes the island. And from the island, I've also explained one term, that how the Deccan Plateau has formed. So Deccan Plateau has formed because of the eruption of the lava from Reunion Island, है ना? When the moment Indian plate or the Indian subcontinent was passing, okay, over the Reunion Island, so Reunion Island got erupted, और उसके बाद क्या हुआ, when the Reunion Island got erupted, तो उसके बाद then the whole lava is spread over the Deccan Plateau, that gives rise to the black soil, and this black soil is also known as the Regur soil or cotton soil, because it is very good for the cultivation of the cotton. And for cotton cultivation, what you need 120 frost free days for the cotton cultivation. Okay, and India is the leading producer of the cotton. We have the silk root, cotton roots. So this was the pictographical representation, that how Indian plate or Indian subcontinent has moved in the northern direction. Okay, then what I have said, that overall, because it was moving, and so it has uplifted as a young fold mountain. Now this young fold mountain has lots of ranges, and especially the four ranges: Trans Himalaya, Great Himalaya, or it is also known as the Himadri, Lesser Himachal, or Shivalik, the outer one. Trans, it is the most northward Himalayas, divided into three ranges: Karakoram, Ladakh, Jaskar. The sequence should be there in your mind. Clear? You should bear this sequence. So Karakoram, we have even elaborated what comes in the Karakoram, है ना? In the Pangongso comes in the Ladakh range. These things we have talked about. Then Great Himalaya, Himadri. Why it is called great? Because all the important mountain peaks, for example Himalaya, K2, Kanchenjunga, these all there in the Himadri or the Great Himalaya. Then Lesser Himalaya, it is a junction between the Great and the Shivalik. And Shivalik is the outer Himalaya, means what? Means beyond south of it, there's no other Himalaya. Take, and there one thing I have explained too, that from Lesser to Shivalik, the lot of the longitudinal valleys. Now these longitudinal valleys are known as the dunes. Clear? And then we have talked about the eastern or the Purvanchal Himalayas or hills. So what I've told you there, that first of all, it's not Himalaya, it's Himalaya ranges. So it's not Himalaya, it's Himalaya ranges, means what? It is a range of the mountains. It's not only one peak of the mountain. So it starts from the, for example, the Pamir Knot. I've shown you the Pamir Knot. It starts from the Pamir Knot, then Ladakh Himalaya, Nepal Himalaya, ठीक. फिर उसके बाद गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना, इन द मेघालय रेंज, अवभोर, दार्फला, मिरी मिश्मी, नागालैंड हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, then Arakayama range, Andaman Nicobar. So this is a long stretch of the mountain ranges. ठीक है ना? So these things I have talked about. Overall, the detailing of these Jaskar and Ladakh, है ना, Karakoram ranges. And apart from that, we've studied about the Pangongso Lake. It's lake which is situated 1/3 in India and 2/3 in the China. And what I've told you there, that overall whatever we are studying, whatever position, geopositions, whatever places we are studying, we going to cover these places in the section of geography, in the section of the mapping, which we're going to start maybe from tomorrow. ठीक है ना? Next, the Great Himalaya, the Himadri, I told you about. Lesser Himalayas too, Shivalik, I told you. The dunes, I told you. इतनी सारी बातें हमारी हो गई थी. Now, if anyone has any problem up to here, just let me know first. Then I'll start the next topic. Anyone? And please turn on your webcam too, so that I can see you. Please. It's mandatory also. मतलब मैं please बोल रहा, it's not me, it's like कि mandatory नहीं है, it's mandatory. If you're turning, सारे क्लासेस में जितनी भी सेकंड क्लास होता है, सब में बच्चे ऑन करते हैं webcam. उससे होता है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है. कोई अच्छे से पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, सो के नहीं पढ़ रहे हो, लेट के बैठ के ऊपर नहीं पढ़ रहे हो. Now comes the syntaxical belt of the Himalaya. Okay, उससे पहले कोई आ गया. Okay, Manjo came little bit late, but no problem. Manjo, we have done the revision part. कल जो पढ़ा था मैं रिवाइज कर लिया. Manjo in the only person who turned on the cameras. ठीक है. अब बात करें सिंटेक्सिकल बैंड. होता क्या है, व्हाट हैपन? देखो, व्हाट आई टोल्ड यू कि जो हिमालय है वो कैसे आ रहा है. द हिमालय इज कमिंग इन दिस वे. द हिमालय रेंजेस, दे आर कमिंग इन दिस वे. सो बेसिकली हेयर नो नेटवर्क, नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 days. ओ माई गॉड.
सो सैड, कोई बात नहीं, इवन दो यू आर पुटिंग योर एफर्ट, थैंक यू फॉर दैट. So this is overall Himalaya. So Himalaya is coming like that. The Himalayan ranges are coming like that. And then the Nepal Himalaya, ठीक है ना, the Sikkim Himalaya, ठीक, मेघालय हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ठीक. तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, the Himalayan ranges this take a bend from here, then go to the Naga hills, Mizo hills kind of, ठीक है ना. तो यहाँ से क्या लेती है, बेंट ले लेती हैं, बेंट. Now this is a bend, and do you know the same bend is also taken from a river, by a river also, which is the river, this river, this also take the same bend. So from where the Himalaya has taken a bend, है ना, मतलब सीधा जा रहा था, उसको सीधा जाना तो यहाँ पे था, चाइना के पास, पर वो नहीं जाता, वो कहता मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, I will take a bend, U-turn, and the same U-turn is, है ना, or some similar U-turn is taken by this river also. Which is this river, anyone? Which is this river? अरे बताओ भाई, कोई आंसर करो, बिना आंसर करे काम नहीं चलेगा, आंसर करिए. देखो, हाँ ठीक है, तो ये सांगपो या फिर हमारा ये क्या कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना. तो दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स, ठीक. अब बात करते हैं, तो ये रिवर जो है ये भी क्या करती है, ये भी एक बेंड ले लेती है. नाउ वी हैव गिवन अ नेम फॉर दिस बेंड, इज नोन एज द सिंटैक्सिकल बेंड, ठीक है ना, सिंटैक्सिकल बेंड. इस बेंड को हमने क्या कह दिया कि दैट इट इज अ नेम, इट इज अ बेंड, है ना, उसको हम बोल रहे हैं सिंटैक्सिकल बेंड. तो ये सिंटैक्सिकल बेंड, सिंपल सी इतनी बात कर रहे हैं. तो वही यहाँ पर बात बोला गई है, ठीक है, कि दैट दे आर सेइंग द सिंटैक्सिकल बेंड ऑफ द हिमालय. तो हिमालय क्या करता है, हिमालय बस क्या करता है, खुद मुड़ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंटैक्सिकल बेंड. नाउ ओवरऑल स्ट्रेच जो होती है हिमालय की, वो होती है नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ठीक है. नंगा पर्वत जो है आपका वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, नियर अबाउट दी इंडस रिवर, और उसके बाद ईस्ट में पड़ता है नामचा बरवा. देखो यहाँ पर होगा भी, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये यहाँ से पड़ता है कहीं, देखो ये दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लीन इट फॉर यू. यहाँ पे तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जस्ट सर्च. वो हिमालय फेस वॉश आ रहा है उसमें, कोई बात नहीं. ना इसमें आपको दिख जाएगा, इसमें नंगा पर्वत नहीं है, कोई बात नहीं. देखो ये इसका जो है ना ओवरऑल हिमालय का जो स्ट्रेच है, दिस इज द ओवरऑल हिमालय स्ट्रेच, ठीक है. तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, जो ईस्टर्न पार्ट जो आता है, दिस इज द नामचा बरवा, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, इज नोन एज द नामचा बरवा, ठीक है. और यहाँ पर पड़ता है क्या, नंगा पर्वत, जो भी दिखाया था मैंने, इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पर पड़ता है नंगा पर्वत. तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा, दिस इज नोन एज द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हिमालय. उसके बाद नंगा पर्वत से, नामचा पर्वा से क्या होता है, नामचा पर्वा से ये मुड़ जाता है, ऐसे बेंड कर जाता है, दिस इज नोन एज द सिंटैक्सिकल बेंड. और ऊपर जो रिवर बेंड कर रही है ये है ब्रह्मपुत्र, इसको भी बोलते हैं सिंटैक्सिकल बेंड. तो डायरेक्टली कोई बेंड ले रहा है ऐसे, नोन एज द सिंटैक्सिकल बेंड, या यूटर्न आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो उसको, बट इट इज नोन एज द सिंटैक्सिकल बेंड in the language of geography. So this is, please remember this thing, Namcha Barwa, this is the easternmost extent, and the westernmost extent we consider it as the Nanga Parvat, ठीक है. this is the Nanga Parvat. कहाँ गया, सॉरी कहाँ गया, ये नंगा पर्वत, दिस इज द नंगा पर्वत, और यहाँ पे आ जाएगा नामचा पर्वत. क्लियर की बात. So it extend from the नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, दिस इज द नंगा पर्वत, ठीक है, और यहाँ पड़ जाएगा नामचा बरवा. क्लियर होगी बात, ठीक. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिंटैक्सिकल बेंड दैट हिमालय ऑल्सो टेक, एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना, और यार्लिंग सांगपो,
यार्लिंग सांगपो रिवर ऑल्सो टेक। ठीक है, जब यार्लिंग सांगपो, एक्चुअली होता है क्या है, जो रिवर होती है ब्रह्मपुत्रा, व्हेन इट इज देयर इन द नेपाल रीजन, उसको यार्लिंग सांगपो बोल देते हैं। ठीक है, द मोमेंट इट एंटर्स इन द अरुणाचल नोन एज द विद द नेम दिहांग दिबांग। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में ब्रह्मपुत्र वो बन जाती है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिंटेक्सिकल बैंड ऑफ द हिमालय। नाउ विल टॉक अबाउट the regional division of the Himalaya, some mountain passes we'll talk about. Clear? Okay. So talking about the regional division of the Himalaya. So what is the regional division? देखो first of all what we have done, we have studied the Himalaya. For example, this is the Himalaya ranges. ठीक है ना? And we have studied the Himalaya in terms of the ranges like this. That we have done that overall. This is the range. For example, कौन सा range लिया? ठीक, हमने कहा कि ये एक रेंज है, दिस इज द रेंज। फॉर एग्जांपल वी हैव टॉक्ड अबाउट लद्दाख रेंज, ऐसे बात कर लो। वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रांस हिमालय। ठीक, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। वी हैव टॉक्ड अबाउट लेसर हिमालय, वी हैव टॉक्ड अबाउट शिवालिक। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्लासिफाइड द हिमालय फ्रॉम फॉर एग्जांपल इन द हॉरिजॉन्टल वे। वी हैव क्लासिफाइड द हिमालय इन द हॉरिजॉन्टल वे, है ना, हमने उसको ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर दिया। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि ये तो ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव क्लासिफाइड और व्हाट वी हैव क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रेंजेस। ठीक है ना, कि कौन कौन सी रेंजेस है। ट्रांस हिमालय में आ गया काराकोरम, ठीक, काराकोरम, है ना, जास्कर, लद्दाख और जास्कर। ठीक ठीक, ये दिस इज व्हाट वी हैव क्लासिफाइड। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑल्सो क्लासिफाइंग और वी आर आल्सो डूइंग कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ देम इन दी वर्टिकल वे, यानी कि ऐसे ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कर दें। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, पहले हमने ऐसे ऐसे किया फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन वर्टिकली एंड व्हाट हाउ वी विल नेम देम। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अगर इंडिया का मैप है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ठीक, नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये माउंटेन रेंज जा रही है, द माउंटेन रेंजेस आर पासेस लाइक दैट। सो व्हाट वी आर सेइंग कि विच एवर हिमालय कम्स इन दिस रीजन विल कॉलिंग इट द पंजाब हिमालय। अगर ये उत्तराखंड में आ गया, उत्तराखंड हिमालय। फिर जो नेपाल में आ गया तो नेपाल हिमालय। सिक्किम में जो आया, सिक्किम हिमालय। ठीक है ना, मेघालय हिमालय, अरुणाचल हिमालय। इस तरह से हम बात करेंगे अब। अर्लियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ द रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द कश्मीर हिमालय और द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय सबसे कश्मीर में ही है, सबसे पहले स्टार्ट हो गया वहीं से। फिर बात करेंगे हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के बारे में। देन दार्जिलिंग और द सिक्किम हिमालय, वहाँ पर हाईएस्ट पीक वॉज कंचनजंगा एंड द कंचनजंगा इज मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कैसा है, मिक्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अरुणाचल हिमालय एंड द ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। ठीक है ना, इसको बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक, सो ओवरऑल थोड़ा सा पहले फर्स्ट विल हैव अ लुक ओवर हेयर। सो सम पीक्स विल सी, और कुछ देखते हैं यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट। सो what we can see from here, this is the Hindu Kush mountain. Please try to connect the things. This is the Hindu Kush mountain. ठीक है ना, और यहाँ से आया था कुलेन शाह, दिस इज द कुलेन शाह। ये दोनों मीट कर रहे थे इस पॉइंट पे एंड दिस पॉइंट वाज वी वर कॉलिंग इट एज द पामीर नॉट। दिस वाज द पामीर नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो चीज़ आके मिल रही हैं, दिस इज द पामीर नॉट। फिर उसके बाद देखो काराकोरम, ठीक है ना, काराकोरम, और उसके बाद लद्दाख, जास्कर, और फिर उसके बाद लद्दाख। तो ये हो गया काराकोरम, ये पहला हो गया, दिस इज सेकेंड, जास्कर, लद्दाख। दीज ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय ओनली। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। फिर आती है यहाँ से इंडस रिवर, देखो यहाँ से इंडस रिवर भी निकल रही है। ये बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी जब मैपिंग पार्ट करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही करने वाले हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। सो दिस इज द इंडस रिवर, इट इज़ मूविंग लाइक दैट। इसकी पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कई सारे कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर बात किया था हमने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये जो रेंजेस है, पीर पंजाल, धौलागिरी, तो रेंजेस हैं। कश्मीर वैली इज़ देयर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देन इट इज़ देयर फॉर एग्जांपल दी नंगा पर्वत, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये सब मूव कर रही हैं आप लोग। इट इज़ द नागटिप्पा, मसूरी रेंज। तो रेंज क्या है, वही है, मतलब बीच छोटे छोटे हिमालय उसको बोल रहे हैं। महाभारत लेक, इस तरह से चलेगा पूरा। फिर उसके बाद ये आपका
डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। तो ये क्या है, दीज ऑल थ्री आर द रेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और फिर उसके बाद गारो, खासी, जैंतिया, दीज आर द रेंजेस ऑफ दिस मेघालय। सो दिस इज द मेघालय, इसकी रेंजेस है गारो, खासी, जैंतिया। एंड दिस ओवरऑल मोस्टली व्हाट हैपन, द नेम ऑफ द हिल्स और हिल्स आर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब। तो जो ट्राइब होती है ना, ट्राइब के नाम पे ही हिल्स का नाम पड़ता है। तो गारो, खासी, जैंतिया, दीज आर द ट्राइब्स, इनके नाम पे वहाँ के हिल का नाम पड़ गया, ठीक है ना, गारो, खासी एंड जैंतिया। क्लियर? And what I told you else that Meghalaya, it is this Meghalaya is the part of, this Meghalaya was the part of किसका, peninsular India। तो this Meghalaya was the part of the peninsular India, वो उससे अलग हो गया था। और जब अलग हो गया था तो बीच में गैप आया था, जब कोई चीज़ अलग होगी, ब्रेक होगी, there will be gap known as the मालदा गैप, मालदा गैप, ठीक है ना। फिर उसके बाद नागा हिल्स आ जाएगा, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ना मणिपुर हिल्स, ठीक है ना, लुशाई हिल्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द हिमालय ओनली, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, विल टॉक अबाउट कश्मीर हिमालय। तो हिमालय दैट लाइज इन द सेक्शन ऑफ द कश्मीर। तो ओवरऑल रेंजेस कैसे जा रही हैं, रेंजेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, समझ गए ना अच्छे से, रेंजेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। वी हैव जस्ट क्लासिफाइड देम, ठीक है ना। और लेट मी जस्ट गिव यू एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। अभी आगे आएगी ये पिक्चर, लेकिन अभी मैं दिखाता देता हूँ आपको। दिस वेरी गुड पिक्चर, या दिस वन इज गुड। नाउ यू कैन रिलेट इट द बेटर वे, ठीक है। अब इसको आप रिलेट कर पाओगे थोड़ा सा अच्छे से। देखो, सो ओवरऑल रेंजेस तो ऐसे जा रही थी, पर हमने इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब वर्टिकल डिवाइड किया, सो नाउ इन दिस पिक्चर और इन दिस मैप व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्लासिफाइड द हिमालय, है ना, वर्टिकली। पर वर्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नाउ देयर कुड बी द क्लासिफिकेशन कुड बी सम ऑन द बेसिस ऑफ सम डिमार्केशन। सो जो डिमार्केशन है वो रिवर के बेसिस पे है, रिवर के बेसिस पे, और रिवर बात कर दो या फिर यू कैन टॉक कि वो रीजन के बेसिस पे। जैसे मैंने बात किया, अगर रिवर के बेसिस पे मैं बात करूँ, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले ये इंडस आ रही है, इंडस आ रही है, ठीक ना, इंडस आ रही है और यहाँ से आ रही सतलज आ रही है। इंडस और सतलज के बीच में पड़ता है पंजाब, तो इसको हमने बोल दिया क्या, दिस इज नोन एज द पंजाब हिमालय, ठीक। फिर आएगा क्या, अच्छा कश्मीर हिमालय ऊपर पड़ जाएगा, कश्मीर हिमालय के बारे में बात करेंगे अभी। फिर उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, दी सतलज और काली के बीच में जो हिमालय, इट इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय, ठीक। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उसको बोल दिया हमने नेपाल हिमालय। और उसी तरह तीस्ता और ये यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ऐसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय इसको बोल दिया हमने आसाम हिमालय, ठीक है ना, आसाम हिमालय। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे करेंगे, ISKT, याद करो ISKT। तो ISKT का मतलब क्या हो गया, I मतलब इंदस, ठीक है, I मतलब इंदस, S मतलब सतलज, K फॉर काली, T फॉर तीस्ता। तीस्ता कहाँ से आती है, सिक्किम के पास से, ठीक है ना, सिक्किम से आती है तीस्ता। तीस्ता सिक्किम में ही बहती मेनली, और उसकी वहाँ की मेजर रिवर है वो तीस्ता, ठीक है ना। और बाकी इतना तो आपको पता ही थोड़ा सा कि पंजाब सबसे वेस्ट में पड़ेगा, तो ये हो गया यहाँ पे, इन दोनों के बीच में हो जाएगा पंजाब, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, कुमाऊँ, कुमाऊँ गढ़वाल। अब हमको पता है पंजाब के बाद क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा, मान लीजिए अगर सीक्वेंस में थोड़ा बहुत देखा जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा कुमाऊँ ये वाला, ठीक। और उसके बाद ये काली से कुमाऊँ याद कर सकते हैं आप। थर्ड क्या है, नेपाल हिमालय, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेपाल हिमालय, और असम तो बाद में ही आएगा, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। सो हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम कि काली और तीस्ता, ठीक है ना, काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, या नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन काली एंड विच रिवर, या विच टू रिवर, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कश्मीर हिमालय। सो कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस थी माउंटेन की, सो वी हैव सीन द रेंजेस ऑफ द काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, दीज आर थ्री मेन रेंजेस, है ना, वॉज ऑफ द ट्रांस हिमालय, वॉज ऑफ द ट्रांस हिमालय। पीर पंजाल इज ऑल्सो देयर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, इट इज़ दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इसका, वो क्या है, कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है, बिटवीन दी ग्रेट हिमालय एंड द काराकोरम रेंजेस। कोल्ड डिजर्ट मतलब लद्दाख, जैसे
कोल्ड डेजर्ट तो पता ही होगा आपको, जैसे सिंपल सी बात है, किस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो क्या हो गया, कोल्ड डेजर्ट है वो पूरा, ठीक है ना। डेजर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप ओनली, एक डेजर्ट हो सकता है हॉट डेजर्ट हो, एक होता है कोल्ड डेजर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हॉट डेजर्ट मतलब इंडिया का थार डेजर्ट, वो हॉट डेजर्ट है। अफ्रीका का सहारा डेजर्ट जो आपके मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया, मॉरिशस, माली यहाँ पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कश्मीर वैली में आपको क्या मिलेगा, डल लेक, और उसके बाद क्या मिलेगा, डल लेक बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंचाल। ना डल लेक इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। आई टोल्ड यू हाउ अ लेक और रिवर बिकम अ फ्रेश वाटर और द ब्रैकिश वाटर, ठीक है ना, कैसे बनती है। मैंने कहा था कि अगर कोई भी सिंपल सी बात है, इफ़ दिस एनी वाटर बॉडी और उसमें इनकमिंग वाटर का सोर्स है, यानी कि वाटर इनलेट का सोर्स है, बट देयर इज नो सोर्स ऑफ वाटर आउटलेट, there's the source of the water inlet but there's no source of the water outlet, then what will happen, है ना, the water will accumulate and water will evaporate leading to the formation of the salt behind, ठीक है ना। तो उसके जो सॉल्टी नेचर है वो हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इट्स लाइक पेंगोंगसो लेक वी हैव टॉक्ड अबाउट, पेंगोंगसो लेक वाज द सॉल्टी लेक। डल लेक आपने सुना होगा, डल लेक इज़ वेरी फेमस इन दी कश्मीर, वहाँ पे है ना हाउस बोट्स चलती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। सो इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, बट इफ़ यू गोइंग टू टॉक दैट विच इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द इंडिया, सो इट्स देयर इन द कश्मीर ओनली, इट इज़ द वूलर लेक। So Wooler Lake is the freshwater lake of the Kashmir. Freshwater lake. It is the freshwater lake. Now Dal Lake is also freshwater lake, but the largest freshwater lake, it is the largest freshwater lake. ठीक है, it is the Wooler Lake. ठीक है, हाँ। और बाकी एक और लेक बात किया था, पता होना चाहिए, एक पुलिकट लेक। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि पुलिकट लेक इट इज़ देयर बिटवीन दी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ती है पुलिकट लेक, आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ती है पुलिकट लेक। और पेंगोंगसो के बारे में बात कर चुके थे हम लोग, पेंगोंगसो लेक वी हैव टॉक्ड अबाउट, पेंगोंगसो लेक, पेंगोंगसो लेक, ठीक है ना, जिसका 1/3 जो था वॉज इन इंडिया, 2/3 वॉज इन द पाकिस्तान, चाइना। दिस इज ऑल्सो वॉट सॉल्ट वाटर लेक या ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर, ठीक। सो एंड सम इंपॉर्टेंट फील्ड्स, फॉर एग्जांपल दी बाल्टोरो एंड द सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड इन दिस। कल मैंने बताया था सियाचिन डे बताना था आपको, और कौन सा ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन मेघदूत दैट हैपन इन द सियाचिन इन द ईयर ऑफ 1984, ठीक है। और हमने सियाचिन को कैप्चर कर लिया था अंडर आर्टिकल 2। फिर बात करते हैं करेवा। करेवा क्या है, व्हाट इज करेवा। जैसे अभी मैंने बात किया था कि फॉर द ब्लैक सॉइल आई हैव यूज द वर्ड रेगुर, याद है मैंने, ब्लैक सॉइल जो डेक्कन प्लेटू में बनी है बिकॉज ऑफ रीयूनियन आइलैंड, फॉर दैट आई हैव यूज द वर्ड रेगुर और ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल, ये यूज़ किया था रेगुर। तो रेगुर इज अ लोकल वर्ड। इन द सेम मैनर वट एवर टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन द JNK which is very much suitable for the cultivation of saffron, केसर, in Hindi this is known as the केसर। so saffron या केसर के कल्टीवेशन के लिए, उसकी फार्मिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल है, इट इज़ नोन एज दी करेवा। ना एक और चीज़ यहाँ से बनता है, आप जब साइंस सेक्शन में पढ़ोगे, और साइंस सेक्शन में मैं बता रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन साइंस सेक्शन में गलत नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज़ माई गारंटी, नहीं ना, क्योंकि जो नोट्स हैं है ना, ओवरऑल द वे आई एम गोइंग टू टीच यू, तो वहाँ पे इतनी बढ़िया चीज़ें मिलेंगी आपको कि मतलब गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑल द PYQ आर देयर। तो सैफ्रॉन जो है, सैफ्रॉन इट इज़ मेड फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है सैफ्रॉन, ठीक। एंड सैफ्रॉन इट इज कल्टिवेटेड इन दी करेवा। तो करेवा दे आर बेस्ट और दे आर मोस्ट सुटेबल, है ना, टाइप ऑफ द सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सैफ्रॉन, ठीक है। तो करेवा बताना चाहिए, करेवा कहाँ मिलेगी, करेवा JNK में मिलेगी, JNK में मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, डल लेक के बारे में बात कर लिया, फ्रेश वाटर लेक। वूलर लेक इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक, बोथ द फ्रेश वाटर लेक, but the difference is the Wooler it is the largest freshwater lake in India. Wooler is the largest freshwater lake in the India. Pangongso Lake and Somoriri Lake, दो लेक्स हैं,
These two lakes you're going to find in the mapping section. So Pangong Tso and Somodri, they are the salt water lake or the salt water lake or salty lake. Pangong Tso 1/3 है हमारा इंडिया में, 2/3 इन दी चाइना. श्रीनगर, हाँ ये बताओ श्रीनगर इज बैंक ऑफ फिश रिवर, ये आप होमवर्क है बताना. फिर बात करेंगे, बस ठीक है यहाँ से इतना, ठीक है. एक और चीज़ है, चलो वो मैपिंग में कवर करूँगा व्हेन द मोमेंट आई गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इंडस वाटर सिस्टम. इंडस वाटर सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ मच वाटर इज कंट्रोल बाय द इंडिया, हाउ मच बाय द पाकिस्तान, द ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर है ना 1960, ठीक है. तो उसके बारे में बात करेंगे, तब सारी चीज़ें वहाँ से सही हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा. देन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय. तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर बेसिकली इट लाइज बिटवीन द रावी एंड काली. कैसे याद किया, ISKT, ठीक है, इस तरह से. तो ISKT से याद करोगे, ठीक है. इंडस, फिर उसके बाद सतलज, ठीक, काली और तीस्ता. तो उत्तराखंड में डून्स भी मिलेंगे हमें, है ना. देहरादून मैंने बताया था उसके बारे में, है ना. और यहाँ की बेसिकली भूतिया एक ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है, जो माइग्रेट करते हैं. बुग्याल्स बेसिकली यहाँ पे वैलीज और में विंटर में बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना. एंड हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज द ओवरऑल द वैली ऑफ फ्लावर. एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो भी मैपिंग में आएगी क्या, हाँ यहाँ पे मैंने नहीं रखी उसको, कोई बात नहीं, देखते हैं, शायद मैपिंग स्टार्ट नहीं आ नहीं पाएगी, ठीक है. यहाँ पर क्या है, बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं, उसको भी याद करवा दूंगा मैं आपको बहुत अच्छे से. गंगोत्री, यमुनेत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ. हेमकुंड भी है बट ठीक है. गंगोत्री, यमुनेत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. इन 5 प्रयाग से, 5 प्रयाग से कौन सी रिवर निकलती है, कहाँ जाती है और कहाँ पर मिलके कौन सा प्रयाग बनाती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. उनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे हमने कहा डॉक्टर KNV, दिस इज द निमोनिक. तो वहाँ पर देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग. तो इस तरह के जो 5 प्रयाग बनेंगे, यहाँ पर बहुत लेट हो गया आप, ठीक है. तो ये जो 5 प्रयाग बनेंगे, दीज प्रयाग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर ये बाकी अदर डिवीज़न है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं. बाकी सारा मैपिंग से ही करने वाले हैं हम लोग. सेंट्रल हिमालय में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सेंट्रल हिमालय में बेसिकली वही ISKT से देख लो, ISKT, ठीक है. सेंट्रल हिमालय में ये कैसे बिटवीन द काली इन द वेस्ट एंड द तीस्ता इन द ईस्ट, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना. माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाऊ, ये सारी जो रेंजेस हैं दैट यू गोइंग टू सी इन दी मैपिंग पार्ट, ये यहाँ पे कवर हो जाएंगी, क्लियर. महाभारत रेंज विल बी ऑल्सो गोइंग टू कवर. फिर बात करते हैं दार्जिलिंग और द सिक्किम हिमालय के बारे में. सो दार्जिलिंग सिक्किम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम हियर इज द तीस्ता रिवर, ठीक है ना. एंड कंचनजंगा इट इज़ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालय इन दिस सेक्शन, कंचनजंगा. एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ द यूनेस्को मिक्स्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है. द्वार का फॉर्मेशन होता है. द्वार क्या होता है, द्वार बेसिकली यूज टू डेवलपमेंट फॉर द टी गार्डन, ठीक है ना, इसको होता है. और एक होता है दुआब क्या होता है, ये द्वार है. दुआब क्या होता है, दुआब द एरिया बिटवीन द 2 रिवर. जैसे अगर यूपी के बारे में बात किया जाए तो यूपी में गंगा और यमुना के बीच का जो रिवर होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है ना. वाई द एरिया बिटवीन द 2 रिवर्स are very fertile, or why the area near the rivers, जैसे for example Indus Valley civilization, so that the people used to live beside the Indus Valley civilization, means beside the Indus River. Why? Because first of all the river is the source of the water, so it is beneficial for them. Next, whatever sediments are coming with the river, so because of that the near soil of that river, so that area is very fertile. So if you are doing any type of the cultivation, cropping, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना. बहुत अच्छी क्रॉप वहाँ पर होगी. फिर अरुणाचल हिमालय में, है ना, अरुणाचल हिमालय में सो बेसिकली यहाँ पर पीक्स में बात करें तो कांटू और उसके बाद नामचा बरवा. बात क्या मैंने क्या किया था, नंगा पर्वत टू नामचा बरवा. सो नामचा बरवा इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है ना. और उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में, कौन कौन सी हैं, कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित रिवर, है ना. तो ऐसे आती है, सुबनसिरी यहाँ से आ रही है, दिहांग यहाँ से आ गई, लोहित यहाँ से आ गई, ठीक है ना, कामेंग. तो ओवरऑल इस तरह से हम बात करेंगे. देन सम ऑन द नेम ऑफ सम ट्राइब्स, द ओवरऑल द माउंटेन रेंज हैज़ बी नेम्ड, है ना. फॉर एग्जांपल द अबोर डाफला, अमीरी मिशमी,
ठीक है ना, और निशी ट्राइब, नागा ट्राइब, ये सारी ट्राइब्स हैं वहाँ की, ठीक है। मोपा, डाफला, अबोर, मिशमी, निशी और नागास, ठीक है। नागा भी वहाँ पे मिल जाते हैं। लार्जेस्ट ट्राइब इज दी निशी ट्राइब, निशी ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ। एंड झूम कल्टिवेशन वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे। हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, झूम कल्टिवेशन। ना झूम कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, ठीक है ना, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, बर्न कल्टिवेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झूम कल्टिवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन? सो बेसिकली होता है कि मोस्ट ऑफ द रीजन जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, या फिर नॉर्थ ईस्ट इज डेफिनेटली इट्स वेरी रिच फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी और टोपोग्राफी, जियोग्राफी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिच एफॉरेस्टेशन। सो वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। So if the forest cover of any area is very large, so definitely it will leads to the difficulty of it leads to the difficulty for the agriculture, ठीक है ना। So if the people want to do agriculture in the forested area, they will do, they will first cut the forest. So cutting the forest, ठीक है ना, and then doing the agriculture, so that is the only way. Now what happen when you cut the forest, it takes lots of efforts and resources. So what could be a way? The way could be that you can burn the forest. So whatever the area is there, उसको burn कर दो, ठीक है ना, burn कर दो, clear? Now once you burn that area, what will happen? The residue will be left. So whatever the residue of that wood है ना, तो वो left हो जाएगा. So it is believed जो वो residue होता है, that residue it works as a fertilizer for the field, ठीक है। तो उस एग्रीकल्चरल फीड के लिए वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नाउ शिफ्टिंग, व्हाई इट इज नोन एज द शिफ्टिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। व्हाई इट इज नोन एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? बिकॉज व्हाट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3-4 years में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन, द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड डिक्रीजेस. Then the people move to the different area and then they again practice the same thing there, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्टिवेशन। झूमिंग इज द लोकल नेम दैट इज गिवन स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और ये अभी आपको एग्जाम के लिए भी पढ़ना होगा कि और जो ओवरऑल वर्ड में इनके बहुत सारे नाम हैं, विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। ईस्टर्न हिल्स में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भाई कौन कौन सी हिल्स आएगी, जैसे मैंने बताया था, पटकाई बूम, नागा हिल्स, नागालैंड में मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। झूम कल्टिवेशन जैसे मैंने बात किया, यहाँ पर भी प्रैक्टिस किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी मतलब क्या, दे डोंट हैव द ऑप्शन, सिंपल सी बात है, यू डोंट हैव द ऑप्शन। इफ द लॉट ऑफ द ग्रीनरी इज देयर, लॉट ऑफ द फॉरेस्ट इज देयर, इफ यू वांट टू डू द एग्रीकल्चर, तो कैसे करोगे? यू हैव टू कट द फॉरेस्ट, ठीक है ना। बराक इज द रिवर दैट फ्लोज इन द रीजन ऑफ द मणिपुर एंड द मिजोरम, ठीक है ना। लोकटक लेक, डेफिनेटली दिस लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेक in a very detailed manner in the mapping of the Manipur, ठीक है। then there will talk about the Sangai deer, ठीक है, the dancing deer, what is the specialty of this Loktak lake, ठीक है ना, and why this lake is always there in the news. So this lake is just like the, you can say, the olive-reeded turtle, ठीक है, तो बहुत न्यूज़ में रहती है। तो कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में रहती है इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द मैप ऑफ द ओवरऑल पासेस। सो ओवरऑल कितने पासेस हैं, है ना, सब इंपॉर्टेंट पासेस, तो वो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। और अपने स्टेट्स के तो पास डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ पे जैसे बात की, यहाँ पे दिस इज द बोमडीला पास, ठीक है ना, एंड दिस इज द यांग पास, ठीक है ना। तो इसको मतलब यार्लिंग सांगपो के नाम पे शायद रखा होगा इसको। दिहांग पास बिकॉज ऑफ द दिबांग रिवर, सो यहाँ पे हो गया दिहांग पास। दीपर पास इज देयर, ठीक है ना, दीपक पास इज देयर। तो इस तरह से कई सारे पासेस हैं। इन द सिक्किम वी हैव टू इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है ना, नोन एज दी नाथुला एंड नाकुला, ठीक है ना, सॉरी नाथुला एंड जिलीपला, ठीक है ना, और ये तीसरा है एक नाकुला। तो तीन है, नाथुला, नाकुला और जिलीपला, तीन पास हैं इन द सिक्किम, और यहीं पे कंचनजंगा भी हमें मिल रहा था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आओगे, जब आप कश्मीर में आओगे तो यहाँ पर कई सारे पासेस हैं जो आपको याद भी रखना है, ठीक है। For example, some important passes are, for example, this pass which is known as the Banihal Pass. This is known as the Pir Panjal Pass, is also very important, ठीक है। Next is the Burjil Pass is there, okay, Jojila Pass, okay, Khardungla is also important,
नेक्स्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट यहाँ के देख लेते हैं। मिटान का पास, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका काराकोरम भी आएगा यहाँ पर, यहाँ पर शायद नहीं है, कोई बात नहीं। अगिल पास इज देयर टू, एंड ठीक है, एंड यहाँ पर जो उत्तराखंड में आ जाओगे, दिस इज द उत्तराखंड। उत्तराखंड के रीजन में यू विल फाइंड द पास लाइक द माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, ठीक है। तो इतने जो पासेस हैं, एटलीस्ट इतने जो मैंने बताए हैं, इतने आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ इंडिया वाले पासेस हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे थालघाट, बोरघाट और पास, इनको भी पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये आसिरगढ़ का पास है, हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, द आसिरगढ़ फोर्ट इट इज़ द की टू डेक्कन। हैव यू हर्ड अबाउट इट? आसिरगढ़ फोर्ट इट इज़ द की टू डेक्कन। क्यों? क्योंकि यहाँ से डेक्कन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पास है ना, पास, दिस पास इज कंसीडर्ड एज द की टू डेक्कन। इस तरह से बात करते हैं आसिरगढ़ फोर्ट को, ठीक है। साउथ इंडिया में हम बात करेंगे भोरघाट के बारे में, और उसके बाद पालघाट के बारे में, ठीक है ना, भोरघाट और थालघाट के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे पालघाट के बारे में। दिस विल कवर इन द सेक्शन ऑफ मैपिंग, ठीक है। सो ओवरऑल कौन कौन से प्लेटू हैं, प्लेटू को देख लेते हैं। प्लेटू क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिल एंड प्लेटू? वन थिंग इज द हिल, अदर थिंग इज द प्लेटू। तो एक हिल होता है, नेक्स्ट इन द प्लेटू। डिफरेंस क्या दोनों में? हिल का ओवरऑल जो हाइट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हिल विल बी एलिवेटेड एंड पॉइंटेड ऑल्सो, हिल विल बी एलिवेटेड एंड पॉइंटेड ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा एक क्या होगा, स्टीप पॉइंट होगा। सो दैट दिस इज वन डेफिनेशन। नेक्स्ट, ओवरऑल द हाइट ऑफ दिस हिल, will be more than 1000 meter. So it is more than 1000 meters height of this hill, ठीक। But in the case of the plateau, what will happen? First of all, the shape of the plateau will be like this. This is the shape of the plateau, ठीक है ना। वैसे तो इसकी हाइट ज़्यादा ही हो गई, बट चलो इसकी हाइट कम कर देते हैं। So this is like that, ठीक। तो ओवरऑल ये हो गया हमारा प्लेटू, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, तो व्हाट वी हैव सीन, तो ओवरऑल इसकी जो हाइट है वो कम है। सो द हाइट ऑफ द प्लेटू इट इज लेस देन 1000 मीटर्स, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, ओवरऑल द अपर सरफेस, दिस वन इज फ्लैट, थोड़ी सी सरफेस होगी उसकी, वो ऊपर की फ्लैट होगी। तो ये हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हिल एंड प्लेटू। डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, हिल नहीं डेक्कन। डेक्कन इज द प्लेटू, क्योंकि लावा ऊपर आया ना डेक्कन में, तो लावा ऊपर आके जम गया, तो थोड़ा सा हाइट पे आ जाएगा ना। सो इट इज डेक्कन प्लेटू, नॉट डेक्कन हिल, ठीक है। सो हेयर वी हैव फॉर एग्जांपल द प्लेटूज लाइक, फॉर एग्जांपल दिस इज द बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू सुना होगा आपने, शिलोंग प्लेटू मेघालय में, ठीक ना। शिलोंग प्लेटू ये हो गया, बट वहाँ पर जो हिल्स हैं, ठीक है ना, गारो खासी जयंतियाँ, वो पार्ट है किसका? हिमालय का, ठीक है ना। ये है दंडनकारण्य प्लेटू, तेलंगाना में पड़ेगा, तेलंगाना प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू, ये कैसे बना था? बिकॉज ऑफ रियूनियन आइलैंड, है ना, और यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी, वेरी रिच इन दी कॉटन कल्टिवेशन, ठीक। कर्नाटक प्लेटू, ठीक। मालवा प्लेटू। तो ये कुछ प्लेटूज हैं जो आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमने बात कर लिया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रांस हिमालय, सो दिस इज द ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिस इज द ग्रेट हिमालय, ट्रांस के बाद क्या आ जाएगा? दिस इज द ग्रेट हिमालय, सो दिस इज, यू कैन सी द ग्रेट हिमालय इज गोइंग देयर, ठीक। फिर उसके बाद लेसर हिमालय बीच में आएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेसर हिमालय, ठीक। देन ये वी हैव द शिवालिक। सो ये हो गया पूरा क्लियर ओवरऑल। देन इट हैज़ टेकन अ बेंड, इसको बोल दिया हमने सिंटैक्सिकल बेंड, ठीक। एंड इवन द यार्लिंग सांगपो, दैट इज द ब्रह्मपुत्र ऑल्सो टेक्स द दिस टाइप ऑफ सिंटैक्सिकल बेंड। तो ये मुड़ जाएगी आके, ठीक। ये मुड़ने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कौन कौन सी और कुछ रेंजेस है। फॉर एग्जांपल अब ये जो था आपका हिमालय, दिस हिमालय वाज व्हाट? इट इज़ द यंग फोल्ड माउंटेन, young why? Because it has been formed in the very recent past in terms of geological age, ठीक है ना, in terms of the geological age. Next thing is this is the Aravalli ranges, ठीक है ना। तो first of all what you can see, the Aravalli ranges, they are not continuous, ठीक। and what is the significance of this Aravalli ranges? So first of all they are not continuous, plus there is a great Indian desert known as the Thar desert. कैसे याद करोगे उसको? हाउ यू विल रिमेंबर दिस थिंग? देयर इज अ कार इन इंडिया, बहुत फेमस कार है, थार कार,
महिंद्रा एक कार बनाती है, महिंद्रा एक कार बनाती है, उसका नाम क्या है, थार कार, ठीक है ना, थार नाम है उसका, महिंद्रा की थार। सो इंडिया में थार चलती है और इंडिया में थार डेजर्ट भी है, ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। नाउ in the later class of the geography I'll explain this thing that most of the desert of the world are in the western part only। जितने भी वर्ल्ड के जो डेजर्ट है ना वो वेस्ट पार्ट पे हैं, वेस्ट पार्ट मतलब कॉन्टिनेंट का जो भी वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर भी है। क्यों है उसका रीज़न मैं दूंगा बाद में, पर अभी के लिए फॉर नाउ आई कैन एटलीस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग। सो बेसिकली द टू फैक्टर्स, तो one factor I'll explain in the later class, but one factor, the other factor I can explain that why the Thar desert has been formed here, ठीक है ना। Now the reason is so what we have the precipitation, the monsoon of India। Can anyone tell in this cold ocean currents? Okay, कोल्ड ओशन की, ठीक है चलो, कोल्ड ओशन करंट, हाँ कोल्ड ओशन करंट इज वन ऑफ द फैक्टर। उसके अलावा चलो बता देता, अच्छा कोल्ड ओशन करंट फैक्टर हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो मंजू ने बोल दिया तो बता देते हैं। देखो कोल्ड ओशन करंट हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस अफ्रीका। सो दिस इज अफ्रीका, ठीक है ना, वेलकम टू अफ्रीका। सो दिस इज अफ्रीका, व्हाट हैपन, इक्वेटर में क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए, जिसको पता है वो समझ जाएगा। ये अर्थ है हमारा, अर्थ में ये इक्वेटर हो गया, ठीक। नाउ अब यहाँ पर चलती है ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, द ट्रेड विंड्स दे फ्लो फ्रॉम दिस इन दिस रीजन, ऐसे फ्लो करती है वो ट्रेड विंड्स। इफ ट्रेड विंड्स आर फ्लोइंग in this direction, and from which direction they are coming, so they are coming from the east, they are coming from the east, इसलिए इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों ईस्टर्ली बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट से आ रही है। तो सिंपल सी बात है, और हमें पता है क्या, यहाँ पर मान लीजिए पानी है, ये ओशियंस है, ओशियंस है। सो इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम हेयर, इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम हेयर, इफ द ट्रेड विंड्स, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज। सो इफ द ट्रेड विंड्स आर कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो व्हाट विल हैपन, इफ दे आर कमिंग ओवर द ओशियंस, सो दे विल कैरी मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर लेके आती है, तो जितना मॉइस्चर लेके आएंगे तो यहाँ पे खूब बारिश करा देंगी, खूब बारिश करा देंगी यहाँ पे, ठीक। और सारा बारिश यहीं पे हो जाएगा, बढ़िया से मज़ा आ जाएगा इन लोगों को। जब तक इवेंट यहाँ के आती है ना, वेस्ट पार्ट में आती है, तब तक पूरी ड्राई हो जाती है, उनके पास पानी बचता नहीं है फॉर द प्रेसिपिटेशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज ड्राई रीजन, दिस इज ड्राई रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन द केस ऑफ अफ्रीका दिस इज सहारा डेजर्ट। या आप नॉर्थ साउथ अमेरिका के बारे में बात कर लो, तो यहाँ पे आपका पूरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड आ जाएगा, ब्राज़ील आ गया बढ़िया से एकदम, है ना, मज़ा आ गया, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। पर जब लास्ट में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर फिर से डेजर्ट आ जाएगा। तो ये मेन रीज़न होता है इसका। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मोस्टली जो इंडिया में प्रेसिपिटेशन होता है, तो इंडिया का जो मोस्टली प्रेसिपिटेशन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। किसकी वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया में 2-3 तरह के मानसून आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साउथ वेस्ट मानसून हो गया, या बात किया नॉर्थ ईस्ट मानसून, या इसी को बोल दिया हमने रीट्रीटिंग मानसून, जब वापस आता है तब जो बारिश होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये जो मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, अब ये जो मानसून आ रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड, डायरेक्शन ऑफ दिस विंड इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड। नाउ दिस अरावली हिल्स, these Aravalli hills, they are parallel to the साउथ वेस्ट मानसून और साउथ वेस्ट विंड। फिर से देखो, साउथ वेस्ट जो मानसून है, जो विंड है, जो इंडिया में बारिश कराती हैं 70% लगभग 80% जो बारिश कराती हैं वो ऐसे आती हैं, ऐसे ना। अरावली हिल्स, इट इज़ द पैरेलल टू this साउथ वेस्ट मानसून। सो दिस साउथ वेस्ट मानसून विल नॉट गोइंग टू स्ट्राइक दिस अरावली हिल्स, दे विल पास पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल जाएंगी। अगर पैरेलल चली गई तो ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाके यहाँ जब हिमालय की रेंजेस से लगेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेशन करा देंगी, यहाँ पर करा देंगी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, पंजाब में यहाँ पर क्योंकि ये पैरेलल गई है इसलिए यहाँ कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, हेंस देयर इज अ डेजर्ट। बट इन दिस केस बिकॉज देयर इज अ वेस्टर्न घाट, दिस इज द वेस्टर्न घाट, सो द मोमेंट दिस साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक दिस वेस्टर्न घाट, ठीक है, व्हाट विल हैपन, देयर इज लॉट ऑफ प्रेसिपिटेशन, देयर इज लॉट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे इस कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और एक और चीज़ होती है, अभी बात करेंगे सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी में एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द हिल एंड द विंड इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड दिस विंड इज द मॉइस्चर लेडेड विंड्स, इसके पास बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत सारा पानी है। तो जैसे ही ये इस माउंटेन से टकराएगा तो क्या होगा, रेन हो जाएगा, बारिश होगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को रेन ही बोलते हैं, बट ज्योग्राफिकल टर्म्स में व्हाट वी यूज़ द वर्ड प्रेसिपिटेशन।
नाउ इफ द माउंटेन, इफ द रेन इज हैपनिंग और प्रेसिपिटेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द माउंटेन, उसको बोलते हैं क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल। बात करेंगे इसके बारे में, रेनफॉल। अब देखो, क्योंकि माउंटेन से जब टकराएगा तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होगा क्योंकि यहाँ पर टकराई है ना ये। इसी तरह से जब यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून वेस्टर्न घाट में टकराता है तो इस जगह पर बारिश ज़्यादा होती है, इसके इस साइड में बारिश कम होती है। एंड दिस लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड इज नोन एज द रेन शैडो एरिया। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज द रेन शैडो रीजन या एरिया, कुछ भी बोल दो आप, रेन शैडो एरिया, ठीक है। और ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कोई भी रेनफॉल जो जब विंड टकराती है, व्हेन द विंड स्ट्राइक फ्रॉम द माउंटेन और फिर रेनफॉल हो रहा है, दैट्स नोन एज द ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिस इज द वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ना वेस्टर्न घाट दे आर मोर कंटिन्यूअस, नाउ यू कैन सी, देखो इसे फिर से देख लो, वेस्टर्न घाट दे आर मोर कंटिन्यूअस बट ईस्टर्न घाट दे आर नॉट दैट मच कंटिन्यूअस। यहाँ पर है, फिर यहाँ है, यहाँ है, ये ज़्यादा कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हेयर, ये तो बात कर चुके थे इसके बारे में। टू रेंजेस वी हैव, वन मोर रेंजेस वी हैव द विंध्यास एंड वी हैव द सतपुरा, विंध्या सतपुरा। एंड विंध्या और सतपुरा के बीच में वी हैव अ रिवर नोन एज द नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया दे फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। क्यों फॉलो करते हैं, देखो जो पूरा डेक्कन प्लेटू बना है ना, ये जो पूरा डेक्कन प्लेटू बना हुआ है, द ओवरऑल नेचर ऑफ डेक्कन प्लेटू इज सच दैट जैसे ये डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे है कि व्हेन यू, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज करेगी, है ना। मतलब ये ऐसे है, जैसे मेरा हाथ देखो, मेरा ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी साउथ में थोड़ा सा एलिवेटेड है, ठीक है ना। सो दिस इज द टोपोग्राफी, दिस इज द टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको, टोपोग्राफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि कहीं पर लैंड कितना ऊपर है, कितना नीचे है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है ना। और द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी सरफेस। कहाँ से मेजर करते हैं, सी सरफेस, सी सरफेस या सी लेवल से। क्यों सी लेवल से मेजर करते हैं, बिकॉज द ओनली द लेवल ऑफ द सी इज इक्वल, अदरवाइज कहीं ऊपर है कहीं नीचे, टोपोग्राफी है ऐसा। तो व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, व्हाट विल हैपन, इसका तो हाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये कुछ ऐसे है, मतलब जैसे ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे है, कुछ ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद इफ़ यू आर मूविंग, तो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसका हाइट इंक्रीज कर जाएगा, एलिवेशन इंक्रीज करेगा। इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो ओवरऑल इसकी जो हाइट होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है ना, हाइट डिक्रीज करती है। तो यानी कि ईस्टर्न घाट पे ये क्या है, टेपर है, थोड़ा सा टेपर, टेपर मतलब नीचे है, थोड़ा सा बेंट है नीचे साइड में। तो डेफिनेटली द फ्लो ऑफ द वाटर विल बी इन दिस डायरेक्शन, फ्लो ऑफ द वाटर विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ से नीचे है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है। तो इसीलिए मोस्टली जो रिवर होती हैं ऑफ द साउथ इंडिया, दे फ्लो इन दी ईस्टर्न घाट, दे फ्लो इन द ईस्टर्न घाट। आई एक्सप्लेन, जब मैं अभी बात करूंगा ना प्रेसिपिटेशन और ऐसा बात करूंगा, रिवर्स के बारे में बात करूंगा, एक्सप्लेन दिस थिंग इन वेरी डिटेल्ड मैनर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट पे है, ठीक है ना। बट सम रिवर्स आर देयर दैट डोंट फॉल इनटू द ईस्टर्न घाट और दैट डोंट ड्रेन इनटू द ईस्टर्न घाट, वो ड्रेन करती है वेस्टर्न घाट में। तो नर्मदा इज वन सच रिवर। उसके सारे और भी कई सारे रिवर है, मैं आई एक्सप्लेन इन द मैपिंग पार्ट। जैसे और कई सारी रिवर कौन सी है, जैसे मान लीजिए कि माही इज देयर टू, है ना, मांडोवी इज देयर टू, ठीक है ना, एंड माही, मांडोवी, और उसके बाद कौन सी थी, ओके, मजौरी, ठीक है ना। तो इस तरह से दो चार और रिवर हैं जो वेस्टर्न घाट में जाती है। तो ये कहने का मतलब क्या है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, या इसको बोलते हैं ना रिफ्ट वैली, खासतौर से क्या बोलेंगे इसको, रिफ्ट वैली। तो क्वेश्चन आएगा, अ रिवर विच फ्लो बिटवीन द रिफ्ट वैली इज नोन एज विच रिवर, ठीक है, कौन सी रिवर है। सो इट इज विच, इट इज दी नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर इट फ्लोज बिटवीन द रिफ्ट वैली, ओके। एंड दो माउंटेन रेंज कौन से हैं, विंध्यास और सतपुरास। इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, एंड फॉल इनटू द गल्फ ऑफ खंबात में फॉल करती है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, कैसे इसको कैसे याद करेंगे कि V ऊपर है, S नीचे है, कैसे याद करेंगे, व्हेन यू स्लीप ऑन बेड,
व्हेन यू स्लीप ऑन बेड। तो बेड में नीचे लेट जाते हो ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो बेड में नीचे लेट जाते हो, ऐसे याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, सतपुड़ा विल बी इन दी लोअर साइड और इन द सदर्न साइड, विंध्यास विल बी इन द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में भी क्या क्या करना है हमें, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। देखो ये तो पहले, ये देखो दिस इज द पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेक्कन प्लेटू कैसे बना है। देखो कैसे बना है, देखो इसमें क्या दिखाया गया है कि रीयूनियन आइलैंड है, देखो, और ये इरप्ट कर रहा है और उसके बाद डेक्कन प्लेटू यहाँ पर बन गया है। ठीक है, देखो यहाँ बताया गया है ये कहाँ गया, दिस इज द रीयूनियन आइलैंड, यानी कि रीयूनियन वोल्केनिक इरप्शन, रीयूनियन। ठीक है, सो हम क्या बात करेंगे, व्हाट यू विल टॉक, हम थोड़ा सा और बात करेंगे। अभी हमें बात करना है, यानी कल की क्लास शायद और लग जाए, हिल्स और आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल इंडिया में कितने आइलैंड हैं, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। तो मतलब ये रेंजेस के बारे में कम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। फिर विल लिटिल बिट टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द गंगा प्लेन। देन वी विल शिफ्ट टू दी सेक्शन ऑफ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी शो यू। अभी एक मिनट है हमारे पास, लेट मी शो यू द सेक्शन ऑफ मैपिंग। ठीक है, कि हम मैपिंग में कैसे काम करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। सो लेट मी शो यू अ ब्रीफ ऑफ दैट। उसमें हर चीज़ आएगी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इट्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूपी। तो यूपी में कौन कौन से रिवर्स हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, हाउ द रिवर मीट्स, विच रिवर इज कमिंग फ्रॉम विच डायरेक्शंस, ओवरऑल द मिक्सिंग ऑफ रिवर्स। तो ओवरऑल इस तरह से यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ द उत्तराखंड। ठीक है ना, दिस इज द मैप ऑफ द उत्तराखंड, दिस इज द मैप ऑफ द यूपी, मतलब ओवरऑल मैप है यहाँ पे। दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा। Because until unless if you are not doing the geography with the map, it will be very difficult for you to remember the facts, to remember the positions, to remember the overall drainage. ठीक है, ये सारी चीज़ें। Now if anyone has any doubt, कुछ पूछना हो पूछ लो। Anyone? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके देन I'll love to see you in the next class, very next class of geography, जो कि tomorrow होगी। और the day after tomorrow we going to start with the section of mapping. Drainage system looks awesome। अरे भाई साहब बहुत awesome है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर जब आओगे, देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द JNK। ठीक है, ये मैपिंग बहुत फेवरेट है मेरा, मतलब दिस इज़ वेरी फेवरेट। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे, सो आई हैव मार्क्ड सम ऑफ द साइट्स। आई हैव मार्क, दिस इज द विंध्यास रेंज, आई हैव मार्क्ड विद द वाइट कलर। ठीक है ना, एंड दिस इज द ओवरऑल मैप जो है। उसके बाद अब जाओगे नीचे, तो दिस ये मैंने ड्रॉ किया है कि कौन कौन से वहाँ पे टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं और स्पीशीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट दिस इज़ द मैप ऑफ सिक्किम। ठीक है ना, यहाँ वेस्ट बंगाल में दिस इज़ द सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द मैप ऑफ महाराष्ट्र, तो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड दिस पिक्चर। सो देन यू विल फाइंड ऑल द कोरल रीफ्स ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर बात करेंगे। और अभी ख़त्म नहीं, ये क्या भागा जा रहा है, इस तरह से है। और कई सारी चीज़ें इसमें और भी हैं भी। सबसे खतरनाक जो है, सबसे अच्छी जो है, वो इट इज़ ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, दिस इज द साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया की इन हिल्स में, इन रेंजेस में। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड है साउथ इंडिया में। ठीक है ना, एंड देन वी हैव सम मोर कॉन्सेप्ट। सो सम इम्पॉर्टेंट बीचेस आर देयर टू। ठीक है ना, दिस इज द ओवरऑल द मैप ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, इसको भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और विल टॉक अबाउट द वाइट बेलीड हेरॉन, नागा हिल्स, ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेटली यू गोइंग टू एंजॉय द सेक्शन ऑफ मैपिंग। बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। एवरीथिंग विल बी इन डिटेल्ड मैनर, मज़ा आएगा, क्योंकि विदाउट मैपिंग ज्योग्राफी इज मेन। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। टिल तक जस्ट अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। एंड द डे आफ्टर टुमारो वी विल गोइंग टू हैव द क्लास ऑफ द मैपिंग। तो मैपिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड इन द सेक्शन ऑफ मैपिंग विल स्टडी अबाउट ड्रेनेज सिस्टम, है ना, एंड ओवरऑल पोजिशंस, इंपॉर्टेंट पोजिशन, रामसर साइट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ। आई वुड लव टू सी इन द वेरी नेक्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।